Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now, my dear fellows and students and colleagues and those who are interested to learn the art of medicine and those who are appearing in the membership examinations or in the fellowship examinations. Now, I have actually given a session previously about the thrombosis and embolism, and a very detailed discussion has been done previously. See how a clot is formed, clot in the formation of the thrombus is concerned, with the specific morphological characteristics and predisposing factors are there in the formation of a thrombus. A thrombus is concerned. As this thrombosis can occur on the arterial side of the vascular system or the venous side of the system. If it breaks into pieces, it is called embolism. These are the shootouts of the thrombus, and it is spreading from that side to the other sides of the body, like metastasis. So, as far as the thrombosis is concerned, I have already said how it is formed and what are the types of the thrombosis in the body. What are the predisposing factors? And I have talked about the Virchow triad, remember it. If you complete this triad, the Virchow triad, that is turbulence of the blood or the stasis of the blood and the hypercoagulability, and there should be some tear in the vascular wall, endothelial tear. There are three important part of this triad. If you will complete this triad, there will be chances of a thrombosis or thrombus formation. And what are the conditions in which there will be stasis? What are the conditions in which there will be hypercoagulability? And what are the conditions in which the endothelial tear can occur? I have already discussed it. The most important thrombosis which we come across in our daily routine is deep vein thrombosis. It is called thrombosis. You know the anatomy of the veins, communicating veins. There are superficial veins and there are deep veins, and deep veins are communicating with the communicating veins. If it occurs, thrombosis or clot in the deep vein, it commonly affects the leg veins, usually because their stasis is a movement of the blood in these parts of the body are poor, especially those patients who are in the ambulatory positions or a very prolonged bed rest without any movements. Say, for example, in cases of the coma, or for example, in the case of the cerebrovascular accident, such as in pregnancy and some other cases in which the ambulation is very, very minimized. So, femoral vein and the popliteal vein and saphenous group of veins and the deep veins of the pelvis are the target. And deep vein thrombosis occurs in this case. I said it is called as phlebothrombosis. Signs and symptoms are the pain and the swelling at that part. It can be redness of the leg and dilation of the surface veins. You see the communicating veins around, engorgement of the veins around, and if it occurs, thrombosis, and if it is dislodged or it will break the
embolization occur to the other part of the body. Now it communicates the pelvic veins, they are communicating with the system which is the vein, the common vein, which is the common iliac veins, and the iliac vein, external iliac and internal iliac, interior iliac system will be communicating inside the body, inside the abdomen with the mesenteric group of veins, and so the inferior vena cava, they are all opening in the inferior vena cava. So the inferior vena cava, the left side of the heart is involved, atria, then ventricle, then pulmonary artery, and then the lungs. So it means that it will go, if you will not interrupt this condition or treat it on the correct time, then there will be chances of the pulmonary embolism. I have already talked about the pulmonary embolism, acute pulmonary embolism, subacute pulmonary embolism, or chronic recurrent pulmonary embolism. I have already talked in my previous lectures when I was taking pulmonology. The therapy, of course, there are preventive measures for this formation of the veins, and the therapy, active therapy, is anticoagulation. Choose the correct anticoagulant and do it. It will save the patient. Another site which the thrombosis can occur in the venous system is very important. Splenic vein thrombosis or portal vein thrombosis is a form of the venous thrombosis affecting the portal group of vein, which can lead to the portal hypertension, definitely proximal to it, and reduction in the blood supply to the liver distal to it. Now, causes of this portal vein thrombosis may be pancreatitis, it may be cirrhosis itself, it may be tumor, it may be compression, it may be the extensive enlargement of the spleen which can compress the portal vein outside. It may be a parasite, schistosoma for example, which is traveling in the portal vein, and it causes the tear in the portal vein, and it can cause the blockage of this vein. It is possible like this. The treatment for the portal vein thrombosis is that the anticoagulant should be done. It will be given, shunts may be placed by ERCP, or you can go for the bypass surgery, as I said, in cirrhosis of the liver. And then you go for the transplantation. Transplantation of either the portal group of the veins, or transplantation of the liver, if the liver is at the state. This is the treatment. Now, it means that you have to search the cause and then manage it. But the urgent therapy is from this group, that is anticoagulants. That hepatic vein thrombosis is called Budd-Chiari syndrome, and there may be in 2 veins, there may be 3, there may be 4 veins. 2 on either side of the right lobe and left on the left. If it is blocked, this is called Budd-Chiari syndrome. It means that it is blocked, it will not communicate with the inferior vena cava. And there will be severe congestion of the liver, acute congestion of the liver, very painful condition. And there will be very, very sudden onset of the ascites in these conditions. Progressive abdominal pain, hepatomegaly, and later the symptom of hepatic dysfunction. And later on, there will be formation of fluid inside the peritoneal cavity. Budd-Chiari syndrome. There are a lot of causes of the Budd-Chiari syndrome, and there hypercoagulability or hyperviscosity and stasis. Again, the tear in the
venous system, they all can cause this Budd-Chiari syndrome. Very, very commonly seen in cases of the multiple myeloma and in cases of the essential thrombocytosis and in cases of the polycythemia vera rubra, which I already discussed previously. Again, it should be managed with the anticoagulant. And it's possible by the intravascular detachment, that is called the embolectomy or thrombectomy via the endovascular procedure. It is possible. Then renal vein thrombosis occurs because of the formation of the clot or the thrombus obstructing the renal vein, leading to the direction of the drainage of the kidney. Renal vein thrombosis, it may be the complication of the glomerulonephritis, it may be the complication of the what we call nephrotic syndrome. Because of the multiple causes, the renal vein thrombosis occurs. It can lead to the imbalances in the blood clotting factor. Blood clotting factor imbalances occurs because there is a communication between the renal system and the liver. The two systems are interconnected. They sense their problems. Symptoms is that the hematuria occur because of back pressure and rupture of the veins inside the parenchyma of the kidney, and it will cause the acute hematuria. Then general morphology characterizes the arterial and venous thrombosis because this is the venous side which I discussed. And the venous side location at the site of the stasis. Characteristic is the venous red stasis, phlebothrombus, and in the direction of the blood flow. It always occurs in the direction of the blood flow or almost invariably occlusive it is type. So no space will be given, so the communicating veins are the only source of the drainage there. And the nature in this case is the red colored stasis will be there, thrombus. Comparing with the arterial or intracardiac thrombus is concerned, the location at the site of the endothelial injury is the main site, or turbulence, low turbulence there, low movement of the blood at that site. Many etiology are there in this case, tight mitral stenosis, atrial myxoma, and so on. At the site it is known as the mural thrombosis or the ball wall thrombus, etc. It may be the formation of the vegetation in the heart. That is the thrombus which is infected thrombus. That is called vegetation. Direction of this arterial thrombus is retrograde actually. Back, not forward. From the point of the attachment, the back pressure will rise actually. The retrograde direction. The nature is usually occlusive, not wholly, maybe possibly 80% occlusive, it may be coronary artery, for example, thrombus. 70%, 60% जो कहते हैं हम कि one vessel disease है, two vessel disease है, three vessel disease है, इसको आप कहते हैं ना, तो इसलिए occlusive तो है, लेकिन ये full occlusive नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ % रह जाता है. और फिर कम्युनिकेशन अच्छा हो, आपका स्टेनोसिस अच्छा हो, तो फिर पेशेंट का जो साइट है इसकी सप्लाई की वो इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होती, आप निकाल सकते हैं उससे. इट इज यूजुअली ग्रे कलर का होता है, ये वाइट फर्मली अडेयर टू दैट वॉल होता है, बिल्कुल वॉल के साथ अटैच होता है. ये दोनों में डिफरेंस है, आर्टीरियल थ्रोम्बस में एंड वीनस थ्रोम्बस में. और फिर एक और चीज़ है कि कंपोज अगर करें हम माइक्रोस्कोपी करें, वीनस थ्रोम्बोसिस में मोर इनमैच्ड इरिथ्रोसाइट्स, यानी मैच किए हुए इरिथ्रोसाइट आपको मिलेंगे इसमें. लेकिन अगर इसमें देखें थ्रोम्बस में तो टैंगल्ड मैच ऑफ द प्लेटलेट्स है, फाइब्रिन है, इरिथ्रोसाइट्स है, डिजेनरेटिव ल्यूकोसाइट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी.
लाइन्स ऑफ जैन जिसको मैंने बताया था पहले, वो इसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि ये एंटीमोटम है। लिहाजा इसमें आपको लाइन्स, अगर आप डीप आप जो है ना माइक्रोस्कोपी करें हाई पावर फील्ड में, तो आपको लाइन्स ऑफ जैन मिलेंगी। इनमें लाइन ऑफ जैन नहीं होती। वेन कॉमन साइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर जो है, वेन्स में लोअर एक्सट्रीमिटीज जो कॉमन है, अपर एक्सट्रीमिटीज में भी हो सकता है। लेस कॉमन इन पेरी प्रोस्टेटिक प्लेक्सस, ओवेरियन एंड द पेरी यूट्रीन वेन्स। इसमें जो कॉमन साइट है वो coronary artery disease, coronary arteries, cerebral arteries, renal arteries, femoral arteries, यहाँ पे जो है ना वो अकॉर्डिंगली पिक्चर जो है ना वो डेवलप होगी क्लिनिकल। नाउ द फेट ऑफ द थ्रोम्बस, उसका फेट क्या होगा? फेट ये हो सकता है इसका कि इसकी जो प्रोपगेशन हो जाए, क्या एक्यूमुलेशन ऑफ मोर प्लेटलेट्स एंड मोर फिब्रिन और वेसल ऑब्स्ट्रक्शन। ज़ाहिर है कि ये विशेष साइकिल है। फिर ये आप फिब्रिन क्लॉट बनाते हैं, उसके ऊपर फिर सरफेस एरिया जो होता है स्मूथ तो नहीं होता, फिर इस पर प्लेटलेट, फिर उसके बाद फिब्रिन मैच, फिर उसके बाद प्लेटलेट, फिर फिब्रिन मैच। इस तरह से इन ड्यू टाइम जो है वो इसका साइज बढ़ता चला जाता है। इस तरह से टोटल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है इसमें। एम्बोलाइज अगर ये टूट गया, ब्रेक हो गया, ये डिस्लॉज हो गया, ट्रेवल टू द अदर साइड्स, और वहाँ का जो है ना एरिया इफेक्टेड होगा, और वहाँ के जो है ना फंक्शनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डिटैच होता है वेन से, पेल्विक वेन से या पेल्विक वेन से, तो ये इंफीरियर वेन के आके क्या करेगा, परमानेंट एम्बोलिज्म करेगा। लेकिन अगर ये आर्टीरियल साइड से जाएगा तो ये सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन कर देगा, और इस तरह से कोई भी चीज़ जहाँ पे भी डिसलॉजमेंट होगा तो सीवे की सूरत में आ सकता है। ये कॉरोनरी जो है ना इस्कीमिया जिसे आप कहते हैं उसमें आ सकता है, रीनल इस्कीमिया कर सकता है, या फिर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ कॉज कर सकता है। डिसोल्यूशन, इसको डिसोल्यूट करना लाजमी होता है आजकल जो है वो रिमूवल बाय फिब्रोनेटिक एक्टिविटी। तो फिब्रोनेटिक एक्टिविटी आप इन्हांस करते हैं तो फिब्रोनेटिक एजेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे आपके इनमें होगा कि स्ट्रेप्टोकाइनेस है जो आप देते हैं, और दूसरा जो है जो आप जो है TPA देते हैं, डाटल पेज वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, यूरोकाइनेस है, स्ट्रेप्टोकाइनेस है, जो चीपेस्ट फिब्रोनेटिक एजेंट है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनालाइजेशन may induce inflammation, fibrosis, re-establish vascular flow। अब रिकैनालाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन जब होती है, जब टूट गया, निकल गया, चलो आपने इसको निकाल दिया, लेकिन एरिया जो है वो बेयर एरिया है, वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होगी, फाइब्रोसिस हो सकती है, और वहाँ पे जब कंप्लीट ब्लॉकेज फॉर एवर हो जाएगा। री-एस्टेब्लिश कर सकते हैं वास्कुलर फ्लो को इससे, अगर आप इन टाइम फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी कर देते हैं। लैब टेस्ट टू मेजर द कोगुलेशन एंड थ्रोम्बोलिसिस, उसके लिए ज़ाहिर है कि जो CBC में प्लेटलेट काउंट है, ब्लीडिंग टाइम में, जो कि लोग नहीं निकालते, जिन्हें निकालना चाहिए, उसके बगैर आपको पता नहीं चलेगा कौन सी स्टेप इफेक्टेड है कोगुलेशन का। APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोलिसिस टाइम, इसको आप कंट्रोल के साथ मेजर करते हैं। ये मेजर और इंट्रिंसिक पाथवे है ऑफ द कोगुलेशन, और यूज टू मॉनिटर द हेपरिन थेरेपी। हेपरिन जब देते हैं तो APTT को आप क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ मैच करते हैं। प्रोथर्मिन टाइम PT जो है उसका INR निकाला जाता है हमेशा। यूज टू मेजर द इफेक्टिवनेस इन ओरल कोगुलेंट लाइक वाफरिन, और ये जो है ये एक्सटेंसिव एक्टिविटी के लिए निकाल दिया जाता है, और ये सारे के सारे विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इसके ज़रिए आप थ्रोम्बोसिस यानी थ्रोम्बिन टाइम, थ्रोम्बिन जो बनता है टाइम लैब के अंदर, वो निकाल सकते हैं। फिब्रिन क्लॉट स्टेबिलिटी को देख सकते हैं आप कि भाई इसके ऊपर आया फिब्रिनोलिसिस का क्या इफेक्ट हुआ। ये नेचुरल फिब्रिनोलाइसिन है,
प्लाज्मीन है उसका क्या इफेक्ट हुआ। और मेजरमेंट कर सकते हैं आप FDP यानी फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। आजकल जो करते हैं वो डी डाइमर एलाइजा वगैरह भी करते हैं इसमें, उससे भी ये मालूम चला लेते हैं। ये तो ना आगे बात हो रही है कि आप किसी की इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं थ्रोम्बोसिस के लिए, लेकिन इसके लिए आपको डीप वेन डॉक्टर आपको करना होगा देखने के लिए, उसको भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, तो आपको करना होगा। नाउ द एम्बोलिज्म इज द डिटैचमेंट ऑफ द थ्रोम्बस और ब्रेक हो जाएगा थ्रोम्बस इनटू पीसेस। Now this is how it occurs. A blood clot that travels within the body is called as embolism. वो जो डायनामिक है ये थ्रोम्बस जो स्टैटिक था, is detached into vascular solid liquid or a gaseous mass that is carried by the blood to the side distant from its spontaneous region. जैसा गैस एम्बोलिज्म है और बहुत सारे हैं। इसमें जो मैंने आपको एम्बोलिज्म की ज़्यादा ताल्लुक है तो डायरेक्ट एमनेटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म फॉर एग्जाम्पल, एम्बोलिज्म ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लड से ड्राइव हो, इट मे ड्राइव फ्रॉम द प्लेसेंटा, इट मे बी ड्राइव फ्रॉम द अ गैस विच इज़ आप इंट्रावेनस देते हैं और उसके अंदर आप ज़्यादा अगर एयर को पुल आउट कर दें या फिर ट्रॉमा हो जाए, उसके ज़रिए एयर चली जाए वेन के अंदर डायरेक्टली, तो एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। इस तरह फैट एम्बोलिज्म भी होता है। ये फैट जो है जो लिवर बेचारे उसका काम है बेसिकली लिवर का, और वो जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेकअप हो जाना चाहिए क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है। या ये है कि कालोमाइक्रॉन्स हैं या ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये ट्रैवल कर जाएँ, टूट जाएँ वहाँ से अपने एरिया के और वीनस साइड को अंदर ये आ जाएँ और ये सिस्टमिक स्प्रेड हो जाए, एंड दैट इज कॉल्ड फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म जो होता है ट्रॉमा के अंदर होता है, लोअर लिम्स के अंदर कुचला जाए आदमी, तो क्या होता है कि वो जब उसके अंदर टूट फूट होती है उस एरिया में, तो वो क्या करता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है अराउंड फैट है उसको वेन्स के अंदर ट्रेवल करा देता है और इस तरह से फैट एम्बोलिज्म हो जाता है। अनलेस अदरवाइज कंसीडर थ्रोम्बोटिक इन ओरिजिन, अदरवाइज दूसरी कॉजेज को छोड़ दें। ज़्यादातर जो है ये ब्लड बॉर्न होता है, यानी थ्रोम्बोटिक ओरिजिन में होता है जो टूट गया है, अब या तो टुकड़े टुकड़े हो गया है या खुद वहाँ से डिटैच हुआ है, दोनों सूरतों में एम्बोलिज्म कहलाएगा। रिजल्ट इन द पार्शियल और द कंप्लीट वास्कुलर ऑक्लूजन। जब आगे जाएगा तो आर्टरीज आर्टरियोल में तब्दील होंगे। आपको मालूम है कि टिपरिंग होती है इसकी, ब्रांच टिपरिंग कहते हैं इसको, तो वहाँ पे अगर ये फंस जाएगा तो वहाँ की सप्लाई को मुनक़ते कर देगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जो डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरीज हैं हार्ट की, जो कि ट्रैवल करती हैं पैरेलल मायोकार्डियम के अंदर चली जाती हैं, उसको तो कोरोनरी एंजियोग्राफी भी नहीं बता सकती है। वहाँ पे अगर ऑक्लूजन हो जाएगा तो वो तो आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, ना तो आपको उसमें मिलेगा जो आप कर रहे हैं प्रोसीजर, कोरोनरी एंजियोग्राफी कर रहे हैं आप इसमें, और दूसरे प्रोसीजर कर रहे हैं जो भी आपको करना है, MRI करें या जो भी करें, उसमें ये आपको नहीं मिलेगा। ये जो है ना ये क्लिनिकली हम डायग्नोज करते हैं और इसको हम कहते हैं सिंड्रोम एक्स ऑफ द हार्ट, यानी हर चीज़ नॉर्मल है इसकी। पेशेंट को पेन है, इंटरमिटेंट पेन हो जाता है, वो इतने छोटा एरिया इन्वॉल्व होता है कि ये ECG भी पकड़ना मुश्किल होता है। बहुत कीन आइज इसको पकड़ लेती हैं, लेकिन अदरवाइज ये पकड़ा नहीं जाता। अब तक अपनी लाइफ में मैंने 2-3 केसेस देखे हैं सिंड्रोम एक्स ऑफ द हार्ट, यानी डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हुई हैं। तो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ये है कि डेफिनेटली इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ द मसल्स हो गया, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन अगर टू पुट्रीफाई हो गया तो गैंग्रीन हो जाएगा वो, इवन लीडिंग टू अ स्ट्रोक। अब देखेंगे इसमें जो आप देखेंगे स्ट्रोक की जो टाइप बेसिकली वो थ्रोम्बोलिक या फिर हेमरेजिक है। ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, ये डिटैच पार्ट हो गया, ये प्लाक था,
ट्रैक के ऊपर इसने लॉन्च किया इसको, टूटा, ये टूट के निकलने के बाद जो ये चला गया ब्रेन में वहाँ पे जाएगा, या तो फिर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में अक्लूड किया, या कुछ ज़्यादातर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो निशाने पे होती है, और उसमें से भी वो आर्टरी जो कि सप्लाई कर रही है इंटरनल कैप्सूल को। तो इसलिए जो है ज़्यादातर जो है ना MCA के जोन या मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है ना वो स्टेक पर होती है ज़्यादातर, लेकिन एंटीरियर सेरेब्रल भी हो सकती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल भी हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस कम है। इसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये एंटीरियर सेरेब्रल सर्कुलेशन है जो कि कैरोटिड सर्कुलेशन कहलाता है। अब ये एम्बोलस जो है हार्ट से भी आ सकता है, थ्रोम्बस ये जो है इनसाइड द हार्ट, ये जो होता है ये आपकी जो लार्ज आर्टरीज है वहाँ से डिटैच हो सकता है। फिर कॉमन ये जो कैरोटिड आर्टरीज ऊपर जा रही हैं वहाँ पे भी जो है ना ये कैरोटिड सिनोसिस हुआ, डैमेज हुआ, वहाँ से भी थ्रोम्बोसिस हुआ, एम्बोलस डिटैच हुआ, या थ्रोम्बस खुद ही डिटैच हो गया और उसने इसको ब्लॉक कर दिया। इसलिए जब किसी स्ट्रोक को एवोल्यूट करते हैं तो फिर इन फिनोमेना को ज़रूर देखते हैं। ये संभव, पहली बात ये कि थ्रोम्बोएम्बोलिक है या हेमरेजिक है। अगर थ्रोम्बोएम्बोलिक है तो इसकी सोर्स क्या है, क्या इसकी सोर्स कहीं दूर है, रिमोट है, या इसकी सोर्स इनसाइड है इन द आर्टेरियल सिस्टम ऑफ द ब्रेन, ये आपको देखना होता है। और ये जब जो पढ़ाते हैं लोग सेरेब्रल एक्सीडेंट, उनको चाहिए कि इसको एक्सप्लेन करें कि इस्कीमिक पेनम्बरा क्या होता है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें तो मैनेजमेंट करने में उनको आसानी हो जाएगी। अदरवाइज ये हैकी पे कि ये भागो, ये डेक्सामेथासोन लगा दो, तो ये कर दो, तो ये कर दो और ये कर दो। लेकिन फ्रेश जब भी होगा ना, ये याद रखिएगा, विदिन 4 आवर्स से 3 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उनका एंडोवास्कुलर एम्बोलेक्टमी कर सकते हैं आप, या थ्रोम्बेक्टमी कर लेंगे, या फिर फिब्रिलेटिंग एजेंट डायरेक्टली इसको इंजेक्ट करके क्लॉट को तोड़ देंगे। इस तरह से ये पार्ट जो सेरेब्रल इन्फेक्शन होने वाला है तो सेरेब्रल इन्फेक्शन से बचा लेंगे उसको। परमानेंट जो है ना उसकी जो आप डैमेज कर रहे हैं और उसकी वजह से वो पैरालाइज होगा, उसको बचा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ अगर आप चाहें तो। आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी इसको पकड़ते हैं और कितनी जल्दी एंडोवास्कुलर सर्जन के हवाले करते हैं। अगर ये पाकिस्तान है और कराची के लोग देख रहे हैं तो याद रखिएगा NICBD में इसका मरकज़ है, स्ट्रोक सेंटर। वो बार बार इश्तहार भी देते रहते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। अब हैरान होंगे कि NICBD के अंदर के बैठे हुए लोगों को जो कि इमरजेंसी डील करें उनको नहीं पता कि यहाँ पे स्ट्रोक सेंटर भी है। इस पर इतना काफ़ी खर्चा किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और वो ये खुद बुला रहे होते हैं और उन्होंने अमेरिका से बंदा हायर किया है जो इसको डील कर रहा है। 3 या 4 लोग हैं, ये हाई पे देते हैं उनको। ये प्रोसीजर जो करते हैं वो एंडोवास्कुलर, ये मुफ्त होता है, इसमें कोई पैसे नहीं देते वो। ये चीज़ जो पैकेज जो है AQH में और जाकर नेशनल वगैरह अगर में जहाँ करते हैं ये प्रोसीजर, वहाँ पे इसके तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का प्रोसीजर होता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक चीज़ मुफ्त अवेलेबल है लेकिन लोगों को पता ही नहीं। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। कराची में अगर किसी को हो गया है, सेरेब्रल इस्कीमिया हुआ है, यानी इन द फॉर्म ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड, आप समझते हैं कि है, CT वो आपको बता देगा कि नॉन हेमरेजिक है। ये जब नॉन हेमरेजिक है तो थ्रोम्बोएम्बोलिक हुआ, तो इसका मतलब है कि ये एंडोवास्कुलर, इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए प्रोसीजर को, और इसको फौरी तौर पे जो है ना एम्बोलेक्टमी या थ्रोम्बेक्टमी कर देनी चाहिए। जितना लेट होगा उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब एम्बोलिज्म की जो टर्मिनोलॉजीज है वो है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, थ्रोम्बो से निकला, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एयर एम्बोलिज्म है, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, फैट और ऑयल इमर्जन एम्बोलिज्म है, कोरोनरी एम्बोलिज्म है, क्रॉस पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म है, राइट साइड की हार्ट से लेफ्ट साइड में चला गया बिकॉज ऑफ द इंटरसेप्टल डिफेक्ट। डायरेक्ट एम्बोलाइजेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। ब्लैंड एम्बोलिज्म है जब थ्रोम्बोटिक प्लग इज कंपोज्ड ऑफ द नॉन सेप्टिक मटेरियल, ब्लैंड स्टेराइल एम्बोलिज्म जिसे कहते हैं। बैसिलरी एम्बोलिज्म है बाय एग्रीगेशन ऑफ द बेसिलाई, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, हम इसको अपनी ज़बान में जो है ना वो कहते हैं
Pyemia. Pyemia is actually nothing but microbiological embolism. Now, bone marrow embolism ये कि material from that fractured bone के जरिए जो है pieces of the bone travel करते हैं और ब्लॉक करते हैं, तो बोन मैरो एम्बोलिज्म होता है। फिर कैपिलरी एम्बोलिज्म होता है जो एंड आर्टरीज है या एंड मस्कुलेचर है, उसकी कैपिलरीज ब्लॉक हो जाए विद बैक्टीरिया, तो कैपिलरी एम्बोलिज्म भी होता है इन सर्टेन सिचुएशंस, इसको पकड़ना भी डिफिकल्ट है। एंड रिजल्ट यही होगा कि वो एरिया जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, या वो नेक्रोसिस होके फोर्टिफाई हो जाएगा। ये डायबिटीज़ के अंदर आपको ये मिलेगा, ये फिनोमेना। डायबिटिक फुट का इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो है कैपिलरी एम्बोलिज्म भी है। रेटिनल एम्बोलिज्म, सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना, सडन लॉस इसमें आएगी, लॉस हो जाएगी। एमरोसिस फिगाक्स, अगर वो डिटैच हो गया टाइम पे तो दोबारा आँख बाहर हो जाएगी। स्पैज़म भी होता है बाज़ दफ़ा, उसके ज़रिए भी जो है ना वो टोटल ब्लॉक हो जाती है। और रेटिनल आर्टरी और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच सिंगल आर्टरी होती है। अब वहाँ पे अगर कहीं बना है और यहाँ पे आके किसी ब्रांच के अंदर चला गया तो ब्रांच के अंदर हो जाएगा, ब्रांच आर्टीरियल या ब्रांच वेन ऑक्लूजन हो जाएगा और वहाँ हेमरेज हो जाएंगे प्रोड्यूस। अब इसके अंदर जो है ना हमें देखें पेलनेस, देखें इसकी ऑप्टिक डिस्क की पेल, बिल्कुल पेल वाइट, उसके अंदर ये ब्रांचेस हैं जो राइज हो रही है, लेकिन टोटल यहाँ पूरा एरिया गायब है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर जो है जब आप देखते हैं, वैसे तो सीटी करते हैं आजकल इसका, और सीटी से आपको पता लग जाता है। आजकल जो है आप सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, लेकिन अगर डायरेक्ट पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है इसका डायग्नोसिस का, डायरेक्ट इसको आप डायग्नोसिस बनाना पड़ती है, टाइम कम होता है और आपको मैनेजमेंट स्टडीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए आप टाइम ज़ाय कर दिया तो फिर पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाएगा और पेशेंट जो है ना वो स्टेज जिसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर में जाके डेथ हो जाएगी उसकी। तो सेरेब्रल एम्बोलिज्म को भी मैंने अभी तस्करा भी किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। इसकी लोकेशन के लिए आप चाहे हार्ट पे या ब्लड वेसल्स पे या कोरोनरी कैरोटिड एंटीरियर सर्कुलेशन पे, या आप जहाँ ट्रांस डॉपलर आप इफेक्ट जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करें, ट्रांस डॉपलर क्रेनियल जिसे कहते हैं डॉपलर, वो जो है ना बहुत जल्दी पकड़ लेता है कहाँ पे है लोकेशन इसकी। इवन सिटी से भी पहले पकड़ सकते हैं, अगर ऑपरेटर अच्छा हो तो वो बता देगा कि कौन सी ब्रांच इन्वॉल्व है। और एंडोवास्कुलर ज़ाहिर है आप फौरी प्रोसीजर कर सकते हैं अगर डिले ना हो पेशेंट, अदरवाइज ये कि फिर आपको जो है ना फिब्रिलेटिक एजेंट या एंटीकोगुलेंट देने होंगे। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का फिनोमेना जो है वो इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, 20 to 25,000 है पर 100,000। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में मल्टीपल एम्बोलाइजेशन होता है, वो एट वंस हाई रिस्क, जिसको एक दफ़ा हो जाए उसको रिपीटेड अटैक्स होते हैं। 60 to 80% परमानेंट एम्बोला साइलेंट होते हैं, स्मॉल होते हैं, और वो उस वक्त तक कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करते। और ये जो होते हैं इसको कहते हैं सब एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और फिर रिकरेंट या क्रॉनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है उनमें भी ऐसे होता है कि ग्रेजुअली जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है पेशेंट को और पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। When it is more than 60% pulmonary circulation obstructed with emboli, then there will be the right heart will definitely involved, and there will be acute right ventricular failure. Effect depend upon the size, may include main pulmonary artery impact across the bifurcation. Cerebral embolus होता है ये और pass into the smaller branches. pulmonary artery divide होती है राइट में और लेफ्ट में, तो वहाँ पे अगर होगा तो सेरेब्रल टाइप का होगा। एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है पल्मोनरी आर्टरी का, मीडियम साइज आर्टरी पल्मोनरी हेमरेज कॉज कर सकती है, स्मॉल एंड आर्टीरियल पल्मोनरी ब्रांच इन्फेक्शन कॉज करेगी जो साइट इन्फेक्शन कहलाता है, लोकलाइज है। और मल्टीपल एम्बोलाइजेशन हो जाए तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा विद राइट साइडेड फेलियर हो जाएगा। सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया किसी को, मिसाल के तौर पे किसी को जो है वो
लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो था थ्रोम्बस था वो टूट गया, म्यूरल थ्रोम्बोसिस। मेजर साइज इन्वॉल्वमेंट की लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं इसमें, और ब्रेन 10% है, तो ये पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के तौर पे सामने आएगा आपको, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म अगर हुआ तो उनके अंदर ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इन्वॉल्वमेंट के ब्रेन के, लेकिन नहीं, ब्रेन के चांसेस 10% है, ज़्यादा चांसेस ये है कि लोअर लिम्ब इन्वॉल्व हो जाएगी। इस तरह से किडनीज भी हैं 1% 2%, वो भी इन्वॉल्व होती है इसमें। कौन से डिपेंड करते हैं, एक्सटेंट ऑफ कोलेटरल वास्कुलर कितनी सप्लाई थी, कोलेटरल सर्कुलेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर अच्छी है तो इफेक्ट कम आएगा। टिश्यूज और लिम्फेटिक इस्कीमिया एंड कैलिबर ऑफ द वेसल एक्लूडेड, कौन सी वेसल एक्लूड हुई है, सवाल ये पैदा होता है। मीडियम साइज हुई है, स्मॉल साइज हुई है, आर्टेरियोल्स में कैपिलरी हुई है, क्या चीज़ ऑक्लूड हुई है, इस पर डिपेंड कर रहा है। इन जनरल द इन्फेक्शन टू द टिश्यूज डाउन स्ट्रीम ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव वेसल, इसके अंदर जो डिस्टल पार्ट है वो इफेक्टेड पार्ट है, उसकी जो पीछे वाला पार्ट है उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अब ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की बात करें, किसी को हो आपने पकड़ लिया कि भाई ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है, यानी डायग्नोसिस आपने बना ली, तो आपके पास 3 जो है ना वो टूल्स हैं। एक एंटीकोगुलेंट्स है, दूसरे फिब्रोलिटिक एजेंट्स हैं, और एंटीप्लेटलेट टू रिड्यूस द क्लॉटिंग। लेकिन अगर इंटरवेंशन करते हैं, ये नॉन इंटरवेंटिव मेथडोलॉजी है। इंटरवेंटिव जो है आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, एंडोवास्कुलर प्रोसीजर करके उस क्लॉट को रिमूव करते हैं। पहले तो आजकल अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ऐसे ही करते हैं, फौरी तौर पर रिपोर्ट करता है पेशेंट, फौरी तौर पर एंडोवास्कुलर जो है ना वो एम्बोलेक्टमी या थर्मेक्टमी कर देते हैं। यहाँ पे ज़रा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। जो दूसरा है कि इसको कर दें, क्लॉटिंग की रिडक्शन कर दें, या एंटीकोगुलेंट से करें, या फिर एजेंट से करें, या फिर एंटीप्लेटलेट से करें, जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे आप करें। एंटीकोगुलेंट में टॉप मोस्ट है वो हेपरीन है, और फिर उसके बाद जो ओरल जो है वाफरीन है। एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में भी करते हैं, डीवीटी में भी करते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी करते हैं, हार्ट सर्जरी में भी करते हैं। हेपरीन बड़ी इफेक्टिव ड्रग है, और ये जो है ना ड्रग होती है, ये फैक्टर है आपका नेचुरली एंटीकोगुलेंट है, वो है एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीथ्रोम्बिन 3 को इन्हांस करती है हेपरीन। वाफरीन विटामिन के, क्योंकि विटामिन के से डिपेंडेंट होता है वाफरीन, तो वाफरीन जो है वो ज़्यादातर ये इन्हांस करती है विटामिन के को, एंटागोनिस्ट है ये, और इस तरह से वो फैक्टर जो है एक्सटेंसिव पाथवे को उसको ब्लॉक कर देती है। हेपरीन को जो है ना जब भी आप करते हैं, देते हैं, तो आप डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसको आप मैच करते हैं कंट्रोल के साथ। आप रखना चाहते हैं कंट्रोल के साथ, जो रखना चाहते हैं आप 1:2 रखना है या 1:3 रखना है। और PTNR जो होता है नॉर्मल आदमी का 1 या 1 से कम होता है, डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन को डील कर रहे हैं। इट शुड बी मोर देन 1.5 और 2 और 2.5 और 3 इन सर्टेन कंडीशंस। थ्रोम्बस जो फॉर्मेशन जो होती है ये एंटीकोगुलेंट के लिए बेस्ट है कि इसको ये ब्रेक करती है आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन अगर आप सडन आप करेंगे तो ये टूटेगा, और टूट के एम्बोलिजाइजेशन हो जाएगी। तो इसके देने का तरीका कार होता है कि इसकी डोसेज होती हैं, ख़ास तौर पे याद रखें वेजिटेशन में हम नहीं इस्तेमाल करते। जब वेजिटेशन हो जाए किसी को तो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर वो टूट गया अचानक, आपने दिया और तोड़ दिया आपने, तो पूरे सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। और फिर ये जो है ना सर्टन पीपल में दिया जाता है जहाँ पे क्लॉट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, डिजीज ऐसी होती है इन पर रिकरेंट क्लॉट्स होते हैं, रिकरेंट ब्लॉकेज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मैकेनिकल हार्ट वेल्स, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर स्टेसिस है लेफ्ट एट्रियम की, वहाँ चांसेस हैं म्यूरल थ्रोम्बोसिस के, वहाँ पे आप प्रिवेंटिव थेरेपी के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं।
वारफरीन को या हेपरिन को। ज़्यादातर वारफरीन इस्तेमाल की जाती है, और आजकल जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स भी हैं। तो सिंथेटिक जो ड्रग्स हैं वो मौजूद हैं, जैसे मिसाल के हेपरिनॉइड्स जिसे आप कहते हैं, एनॉक्सोप्रिन है, डाल्टाप्रिन है, और मैनोक्सिप्रिन है, फलापेरिन है। एनॉक्सोप्रिन ज़्यादा इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, सब कंटिन्यूस लगाते हैं इसको। तो पहले दिन में एनॉक्सोप्रिन 80 लगाते हैं मिलीग्राम, और ये लगाते हैं सब कंटिन्यूसली एब्डोमेन में थ्राइस अ डे। फिर इसको 2 दफ़ा कर देते हैं, और फिर इसको टेपर करते हैं पर डे। तो 5 to 7 डेज में इसको ख़त्म होता है। इसकी आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब इससे जो और ड्रग जो आई हैं अभी से, और क्लासिफिकेशन में जो ड्रग आई हैं, तो रोवाक्सोब्रान है मिसाल के तौर पे। वारफरीन के लिए इन्होंने बताया कि विटामिन के एंटोगोनिस्ट है बेसिकली, इसकी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और एक और ड्रग इन्होंने बताई है डेबिगेट्रॉन एक्सीलेट, न्यू ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, और ये डेबिगेट्रॉन जो है ये अवेलेबल है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और कॉस्टली मेडिसिन है ये बहुत, लेकिन बहरहाल ये इफेक्टिव है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। ये भी आप देख सकते हैं। रोवाक्सोब्रान जिसकी मैं तज़किरा कर रहा था इससे पहले, ये बाहर ने डेवलप की है। इसके अंदर भी यही है कि इंटरेक्शन नहीं होता इसका। इसके मॉनिटरिंग बहुत आसान है। फूड के साथ, एंटासिड के साथ, डिजॉक्सिन के साथ, एस्पिरिन के साथ, नेप्रोक्सिन के साथ, ये जो है ना सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये जबकि हेपरिन का होता है, वारफरीन का हो जाता है, इसका नहीं होता। इसकी मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अगर में ये फैक्टर 12 जो है ना, इसको आप कहते हैं, उसका प्रोबेबली जो है 12A जैसे इनहिबिटर है। ये लिखा हुआ है इसमें 10A इनहिबिटर है, सॉरी। ये इसका साइट ऑफ एक्शन है, प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबली ये साइट डायरेक्टेड फैक्टर 10A इनहिबिटर, एक्टिवेटेड 10A इनहिबिटर है। फिब्रिनोजेनिक एजेंट जो आप इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, यूरोकाइनेस है, एंटीप्लेस है, एनेस्टिप्लेस वगैरह वगैरह, टेल्टप्लेस, ये सारे लिखे हुए हैं। ये सब कॉस्टली ड्रग्स हैं। फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, वगैरह वगैरह। जो भी करते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल है स्ट्रेप्टोकाइनेस है और TPA ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 20,000 का है, ये 2,500 का है। ये एल्ट्रोप्लेस और रेटलप्लेस जो है ये अच्छे ड्रग हैं, डेफिनेटली रैपिडली एक्टिंग ड्रग हैं, साइड इफेक्ट कम है, लेकिन ये 70,000 का एक एम्प्यूर होता है इसका। और डिपेंड करता है कि आपके पास जो है ना इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, इस पर डिपेंड कर रहा होता है। फिर उसके बाद तीसरी टाइप जो है एंटीप्लेटलेट्स की है। इसमें एस्पिरिन है, टिक्लोपिडीन है, डायप्रोमोल है, जिसको याद नहीं रखा, लोग भूल गए हैं, क्लोपिडोग्रेल है। ये 4 दरियाफ्त की हैं अभी तक। एस्पिरिन तो आपको मालूम ही है कि वो साइक्लोऑक्सिन इनहिबिटर है। टिक्लोपिडीन जो है ना वो रिसेप्टर साइड पर है, क्लोपिडोग्रेल भी रिसेप्टर साइड पर है। डायप्रोमोल जो है ना वो इंटरमीडिएट ड्रग है, जो कि प्लेटलेट की इलेशन को रोकती है। ये 4 ड्रग जो है इस्तेमाल कर रही हैं, और मुख्तलिफ डोजेज में इस्तेमाल होती है। एस्पिरिन है, टिक्लोपिडीन अब नहीं करते बिकॉज न्यूट्रोपीनिया की वजह से, लेकिन कहीं कहीं ये इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। डायप्रोमोल जो है ना परसेंटिन है, ये अब ड्रग इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि ये थ्राइस अ डे इस्तेमाल हो रही होती है। इसकी डोज का मसला है। ये तो वंस अ डे है सब, लेकिन ये थ्राइस 4 टाइम्स अ डे है। 25 मिलीग्राम की टैबलेट आती थी, 25 to 100 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे। परसेंटिन ये बहुत मकबूल दवा है, अभी भी ये इस्तेमाल करते हैं जब थेनियम कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पे कोई विश्वास नजर आता है उनको, तो क्या करते हैं, हाई डोज में जो है ना परसेंटिन को इस्तेमाल करते हैं। वो थेलियम स्कैनिंग के दौरान अपने पास ये रखनी पड़ती है। ये चीज़ जो है ना इसलिए रोवाक्सोब्रान या फिब्रिनोजेनिक एजेंट नहीं देते, क्योंकि ऐसा ना एम्बोलाइजेशन हो जाए हार्ट के अंदर खुद ही। इसमें यह है कि एम्बोलाइजेशन इतना तेज़ी से करेगी भी नहीं, और जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर देगी। इसलिए वो समझते हैं कि सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा है डायप्रोमोल का। तो नए लोग सुन रहे हैं इसको, जो अभी आप बता दें आपको कि परसेंटिन अवेलेबल है मार्केट में,
आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिक्लोपिजिन टिकलेट के नाम से अवेलेबल है, 50 मिलीग्राम होती है। एस्प्रिन जो है वो 75 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम और क्लोपिडेग्रोल 75 मिलीग्राम। एस्प्रिन और क्लोपिडेग्रोल की कॉम्बिनेशन भी है जो हम इस्तेमाल करते हैं इन कोरोनरी सिंड्रोम्स सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। और जिसको रिकरेंट हो रहा है डीवीटी, उनके लिए वेना केवल फिल्टर लगा दें यहाँ पे आप, तो बार बार जो है ना डिस्लॉजमेंट होगा। भाई आप तो पहली बात तो ये है कि लोबोलिम की जो वेन्स हैं उनको असेस करें ना, उनका मसले को दूर करें। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पेशेंट इतना हैवी वेट है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो एम्बुलेशन नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर फिल्टर लगा देते हैं। ये फ़िल्टर कई टाइप के हैं, देखिए इस टाइप के फ़िल्टर होते हैं, बास्केट फ़िल्टर हैं, नेट फ़िल्टर्स हैं, दूसरे फ़िल्टर्स हैं, रिकवरी सीलेक्ट गंतव्य समान नेट, और ये नाम नहीं, ये बाज़ार में अवेलेबल हैं। तो ये सारे आप फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। आप ये लगा सकते हैं जब इंफीरियर वेन की आवाज़ बनती है जहाँ से, कॉमन इलियक वेन से, उसके ऊपर लगा दें, या रीनल वेन से प्रॉक्सिमल लगा दें जहाँ से अराइज हुई, या रीनल वेन के डिस्टल लगा दें। डिपेंड करता है आप किस चीज़ को ज़्यादा रिकरेंस हुआ, इसका जो इफेक्ट आए बाद में वो कहाँ है। सबसे ज़्यादा कॉमन साइड जहाँ ये फिल्टर लगाते हैं वो कॉमन इलियक वेन्स जो होती हैं, जो बनाती हैं, वहाँ पे लगाते हैं इसको। जो इंफीरियर वेना के बाद जहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो सेफ्टी प्रोफाइल बहुत बढ़ जाता है। अब ये एक लंबे चौड़े यानी मौजू पे बात की है मैंने, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। इसके सिंड्रोम्स भी होते हैं बहुत सारे, मैंने उनकी बात नहीं की। डिजीज़ भी होती हैं एसोसिएटेड स्पेसिफिकली होती हैं, उन पर मैंने बात नहीं की है, उसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वजह ये होती है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सब्जेक्ट ज़्यादा, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। लेकिन जो 80% लोग दे रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसकी डिजीज़ जो हैं, जैसे डेफिशिएंट प्रोटीन सी डिजीज़ है, एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंट है, प्रोटीन एस डेफिशिएंट है, और वगैरह वगैरह, जो स्पेसिफिकली जो है ना वो डिजीज़ कॉज करते हैं, प्रोन टू डेवलप है थ्रोम्बोम्बोलिज्म, उनको ज़रूर जो है ना देख लें। बुक्स में लिखी हुई हैं ये, आप उनसे पढ़ लें, क्योंकि लेक्चर को महदूद करना होता है। लेकिन हमने पूरा कवरेज कर दिया है, जो डिजीज़ और यानी जो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग के बारे में बात हो गई है, और एबनॉर्मल क्लॉटिंग, दोनों हमने कवर कर दिए हैं इसमें। यानी क्लिनिकल जो है ना हेमेटोलॉजी का ये आखिरी लेक्चर मैंने अभी दे दिया है। अगरचे इसमें कमी है, फिर भी 18 लेक्चर हैं, ये 17, इसमें अभी भी कमी है। तो अगर ये कमी है तो आप अपनी हिसाब से पूरा कर लीजिएगा, या मैं आगे जाऊंगा तो फिर मैं उसको वापस इसमें से टुकड़े लेके, जैसे कहते हैं ना शॉर्ट्स, वो आपको बताऊंगा, तो वो भी आपके काम आ सकते हैं। जो लोग सुन रहे हैं या देखते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है वीडियोस। लेकिन इसके सब्सक्राइबर अभी भी कम हैं। अगर ये आपने सब्सक्रिप्शन लोगों ने नहीं किया, 1000 तक हमें चाहिए, तो ये परमानेंट हो जाएगा 1000 में। अभी इस साल का पेमेंट मैं कर देता हूँ, अपनी जेब से कर दूँगा, तो ये डिलीट होने से बच जाएगा 2023 में। लेकिन ज़ाहिर है मैं हर साल तो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे जो है ना सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप अपने दोस्तों से, अहबाबों से, चाहे वो देखें या ना देखें, सब्सक्रिप्शन को ले जाएंगे ऊपर, तो फिर हम बच जाएंगे डिलीशन से, वरना इसको डिलीट कर देंगे वो। तो प्लीज़ ये लेक्चर अहम है जो मैंने बोले हैं इस एज में आके, जबकि मैं ज़ाहिर उस एज में आ गया हूँ कि इसमें मेरे लिए काम करना बहुत ही दुश्वार है। आई होप कि आप मेरी हेल्प करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।